Welcome you all in a very important topic of accounting today, liabilities. So let's start. What is meaning of liability in accounting? A liability is defined as the future sacrifices of economic benefits that the entity is obliged to make to other entities as a result of past transactions or other past events, the settlement of which may result in the transfer or use of assets, provision of services, or other yielding of economic benefits in the future. लाइबिलिटी क्या है अकाउंटिंग में? जो बिजनेस ने फ्यूचर में सेक्रीफाइसेस करने हैं फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो एंटिटी ओब्लाइज्ड टू पे है, पास्ट में उसने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं जिसके रिजल्ट में उसको कुछ पे करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट्स, फॉर यूजिंग द एसेट्स, फॉर यूजिंग द सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने पास्ट में कोई चीज परचेज की है तो उसके लिए फ्यूचर में उसे पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। In simple words, you can say a liability is something a person or company owes, usually a sum of money, and it is recorded on the right side of the balance sheet. Liability क्या है? जो भी कोई person या company या business enterprise ओ करता है, जिसने पे करना है, जो भी पेएबल है वो sum of money, that is called liability. Now something more about liabilities which would make it more clearer to you. First point is any type of borrowing from persons or banks for improving a business or personal income that is payable during a short or long period of time. किसी भी टाइप की बोरोइंग, लोन कह सकते हैं, किसी पर्सन से लिया हो, किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकें। और ऑब्वियसली वो जो लोन है वो पेएबल होगा, हमने पे करना है या शॉर्ट पीरियड में या लॉन्ग पीरियड में, 1 ईयर के विद इन भी पेमेंट हो सकती है या फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए भी वो पेमेंट्स हो सकती हैं। Second is a duty or responsibility to others that entails settlement by future transfer or use of assets, provision of services or other transaction yielding an economic benefit at a specified or determinable date on occurrence of a specified event or on demand. Responsibility to others, बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे कि फ्यूचर में कोई एसेट्स ट्रांसफर होने वाले हैं, कोई सेटलमेंट होने वाली है और उस ट्रांजैक्शन से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है। एक स्पेसिफाइड डेट पे वो जो इवेंट है वो अकर होगा और या फिर वो क्या होगा, एट डिमांड। Third point is a duty or responsibility that obligates the entity to another, leaving it little or no discretion to avoid settlement. किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, उसकी ऑब्लिगेशन कि उसने किसी को कुछ पे करना है जिसमें कि वो सेटलमेंट अवॉइड नहीं कर सकता। जितनी पेमेंट उसने देनी है उतनी ही उसको देनी पड़ेगी। लाइक ही हैज़ टू पे 50,000 तो उसको 50,000 ही पे करना पड़ेगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी और वो सेटलमेंट उसको करनी ही पड़ेगी। फोर्थ वन इज अ ट्रांजैक्शन और इवेंट ऑब्लिगेटिंग द एंटिटी दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड। वो इवेंट, वो ट्रांजैक्शन जो पहले ही हो चुकी है और उसके रिजल्ट में एंटिटी ने कुछ पे करना है, that transaction, that event is called liability for the business. Now, types of liabilities. There are various types of liabilities: current liabilities, non-current liabilities, contingent liabilities, and capital, or you may say owner's equity. So we will discuss in detail one by one these types of liabilities. Current liabilities.
Obligations which are payable within 12 months or within the operating cycle of a business are known as current liabilities. They are short-term liabilities usually arising out of business activities. वो responsibilities, वो duties जो payable हैं, वो amount जो payable है within 12 months, या कह सकते हो कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है बिजनेस का उसको हम क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। और ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है यूजुअली जो रूटीन एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, जैसे हमने परचेज की है उसके लिए हमने पेमेंट देनी है, यूजुअली इस टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं। कोई एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे करना है रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर ईयर। Examples are trade creditors, interest payable, income tax payable, bills payable, bank account overdrafts, accrued expenses, short term loans. ये सारी की सारी liabilities payable हैं within a period of 12 months. जो 12 months का period है within a 1 year ये सारी liabilities usually payable होती हैं। Non-current liabilities. Non-current liabilities, or you can say fixed liabilities, or you can say long-term liabilities. They are long-term obligations of a business and are not payable within a year or an accounting period, and they are usually used for the purchase of fixed assets. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, फिक्स्ड लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हो, जो 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड में पेबल है, जिसको हमने विद इन 1 ईयर नहीं पे करना, से 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में पे करना है। ये लाइबिलिटीज किससे रिलेटेड होगी? रूटीन से रिलेटेड नहीं होंगी। ये लाइबिलिटीज होंगी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए। जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, कोई बिल्डिंग परचेज किया है, कोई लैंड परचेज किया है, कोई मशीनरी परचेज किया है, तो वो जो लाइबिलिटी है वो हमने विद इन 1 ईयर पे नहीं करनी बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज अमाउंट। Examples: bonds payable, long-term notes payable, deferred tax liabilities, mortgage payable, capital leases और debentures. These are all non-current liabilities जिनको कि हमने विद इन अ ईयर पे नहीं करना, लॉन्ग टर्म में पे करना है। These are also called fixed liabilities, non-current liabilities और long-term liabilities. Contingent liabilities. These are those liabilities that may or may not be incurred by a business depending on the outcome of a future occurrence. In case the occurrence does not happen, an organization is not liable to pay anything. They are required to be disclosed as soon the amount can be estimated and are shown as a footnote to the balance sheet. Contingency होती है कि अगर कोई इवेंट होता है, मे बी मे नॉट बी, अगर तो वो इवेंट हो जाएगा तो वो लाइबिलिटी हम पे करेंगे, अगर वो इवेंट नहीं होता इन एनी केस तो वो लाइबिलिटी हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है। सो इट इज कंटिंजेंट, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मे हैपन और मे नॉट हैपन। ये किस टाइप की लाइबिलिटीज हो सकती हैं? सपोज आपने किसी को गारंटी दी है, किसी के लोन की गारंटी दी है, अगर वो पर्सन पे कर देता है तो ठीक है, अगर वो पर्सन नहीं पे करेगा फिर वो आपकी लाइबिलिटी बनेंगे। सो दीज आर शोन एज फुटनोट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो होगा, नीचे फुटनोट में शो करेंगे। एग्जाम्पल्स आर लॉ सूट्स, प्रोडक्ट वारंटीज, गारंटी फॉर लोन्स। ये क्या है? अगर कोई केस चल रहा है हमारा कोर्ट में, या कोई प्रोडक्ट की वारंटी है कि हमने प्रोडक्ट को चेंज करके देना है, या लोन की गारंटी दी हुई है, ये तभी होंगी अगर लॉ सूट्स के केस में अगर कोर्ट हमें फैसला दे देता है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट। प्रोडक्ट वारंटीज के केस में कि वो प्रोडक्ट में कोई ऐसी खराबी आ गई जो हमें एक्सचेंज करके देना पड़ा तो वो हमें पे करना पड़ेगा। लोन अगर जिस बंदे की हमने गारंटी दी है वो नहीं पे कर रहा और हमें पे करना पड़ा, तो ये सारी क्या है? कंटीजेंट है, मे हैपन और मे नॉट हैपन। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लाइबिलिटी इज ओनर्स इक्विटी, ओनर्स फंड और capital. It is the amount owed to proprietor as capital. It is also called owner's equity, equity, capital,
it is depicted in the accounting equation and it is calculated as assets minus liabilities of a business. It is internal liability and it includes reserves and profits obviously. कैपिटल या ओनर्स फंड्स या ओनर्स इक्विटी ये क्या है, ये भी एक लाइबिलिटी है बट इंटरनल लाइबिलिटी है जो कि बिजनेस ने प्रोप्राइटर को देनी है, बिजनेस ने ओनर को देनी है. हमने पहले ही पढ़ा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है. तो बिजनेस में ओनर ने जो अपनी अमाउंट लगाई हुई है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है, वो रीपे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. अगर वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है उस टाइम पे वो पेमेंट करनी पड़ेगी. सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी एंड इट इज shown in balance sheet and calculated as assets minus liabilities. There are two other types of liabilities. You may classify liabilities as internal liabilities or external liabilities. Internal liabilities, all obligations which a business has to pay back to internal parties such as promoters, owners, employees. These are to be paid internally. जिनको हमने इंटरनली पे करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, जो बिजनेस के अंदर ही हैं, चाहे उसका ओनर है, चाहे उसका एम्प्लॉय है, चाहे उसका प्रमोटर है. जैसे कैपिटल होगी, सैलरीज होगी, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गई, ये किसको पे करना है, ओनर को पे करना है या एम्प्लॉयज को पे करना है. तो ये सारी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटीज. इनका बाहर वाले दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के बाहर नहीं पेमेंट है, बिजनेस के अंदर ही पेमेंट है. External liabilities, all obligations which a business has to pay back to external parties, maybe lenders, vendors. These are external liabilities. वो obligations, वो duty, वो responsibility जो business ने बाहर वाली parties को देनी है, out of the business जो payments हैं, वो लाइबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. बोरो किया हुआ है हमने, कुछ लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेजेस की हुई हैं, टैक्सेस पे करने हैं गवर्नमेंट को, ओवरड्राफ्ट है बैंक को पे करना है, कुछ भी, ये सारी की सारी किस में आ जाएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी. So in nutshell you can say assets are things we own and liabilities are things we owe. Thank you for attending today's session.